Okay, so the recording has started, ladies and gentlemen. So I just repeat the words which I said in the last let it be 5 minutes, 5 to 10 minutes, that I have a network, and in this network, which you can see on your screen, what I want, that all the devices which has been configured to get the IP address dynamically should be able to get the IP addresses dynamically. Like here, for example, you can see here, gentlemen, that if I go to my real system, which means not the simulation, and here you can see that I go to the adapter option, and for example, I go to the Ethernet, I go to the IP version 4, and I go to the properties. So you can see here that I have assigned this IP address statically to my machine, but I can use this option as well, that obtain an IP address automatically. And if I say okay, and I go again here, so if I have configured my machine to get the IP address automatically, there must be a server, DHCP server in the network. It is must. So we need to configure it. How? That is the question. I said to you yesterday that either you can have a dedicated machine for it. Either you can have a dedicated machine in the network, or you can use the existing routers or access points, access routers to provide you IP dynamically. Okay. Now, gentlemen, here what I want to do, I want to configure the DHCP on router R2, and I want to use R1 and R2 as relays. Which means they will relay the IP address given by the R2 to these devices like PC1 and PC2. Relay is like a switch, which means the R1 will be switched when it will be asked for an IP address. It will switch this request to the DNS router, to the DHCP device or server, and the server will respond back, and through this interface it will be received by the PC1. So this R1 and R2 will be acting as a relays, DHCP relays, right? So gentlemen, as I told you last time, that there are 3 steps to configure DHCP. Number 1, for the you have to design, you have to plan how many pools you require. You require a pool for each network. You require a pool for each network. So if we look at this network, can any one of you tell me how many pools I require? How many pools do I require? Mohsin, Alina, Aksa, Ihsan, Usman, Nasir. G. How many pools do I require on R2? Can anyone tell me? R2 के ऊपर मुझे DHCP सर्वर बनाना है. मुझे कितने पूल्स, सबसे पहले डिसाइड करें कितने पूल्स चाहिए. From Aksa Ahmed to everyone, 4. Aksa Ahmed is saying that I need 4 pools. 2 चाहिए. 4. तो अगर मैं आपकी चैट को देख लूं, क्योंकि चैट में नासिर इज सेइंग 4 for R2. सर काइंडली सर रिकॉर्डिंग डन जी. अक्सा भी कहती हैं 4, एंड बस 2 ही बंदे हैं जो कह रहे हैं कि 4 चाहिए, अक्सा एंड नासिर. व्हाट अबाउट अदर्स? सर मैं कह रहा हूँ 2 चाहिए. 2 चाहिए. उस्मान कहते हैं 2. व्हाट अबाउट यू एहसन?
चैट में लिख दें, 4 सिंपल sir. लिख दें, सिंपली मोशन भी लिख दे चैट में, जिस तरह के नासिर ने और अक्सा ने लिखा है, प्लीज डू राइट हियर, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने हम लें। अभी तक मेजॉरिटीज, दो ही मेजॉरिटी है, दोनों कह रहे हैं कि सिर्फ 2 चाहिए, 4 चाहिए, सॉरी 4 से चाहिए सर, R1 पे, R2 पे, R3 पे और 3 चाहिए सर मेरे ख्याल से। 3 चाहिए, बिल्कुल जी ठीक है। अब हमारा मोशन का भी V4 है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि अलीना वगैरह नहीं जवाब लिख रहे। अलीना, कैन यू राइट दी योर, एंड देन डेफिनेटली अगर आप लिखेंगे तो एटलीस्ट यू शुड हैव सॉलिड रीजनिंग बिहाइंड इट। तो लेडीज जेंटलमैन, मैं आपको चलें क्लियर कर देता हूं, अगर आप जवाब नहीं देते। आई नीड ओनली 2, जैसे उस्मान ने कहा। एक मुझे इस R1 नेटवर्क के लिए चाहिए, R1 लैन के लिए चाहिए, एक मुझे R3 लैन के लिए चाहिए। मुझे इस लैन के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही डिवाइस है और उसको स्टैटिक आईपी मिला हुआ है। इसका मतलब मुझे यहां किसी DHCP की जरूरत नहीं है। फर्दरमोर, यहां पे जो आप कनेक्ट होते हैं अपने ISP के साथ, तो ISP आपको IP एड्रेस देगा। इसका मतलब है कि ISP पे ऑलरेडी ये है, तो इसलिए इस जगह पे होना, R2 में होना की कोई जरूरत नहीं। तो I need only two pools, one for R1 LAN and other one for the R3 LAN. तो ये पहला स्टेप ये है कि आप इन दोनों लैंस, अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कितने मेरे पास पूल्स होंगे। अब उससे पहले आपने डिसाइड करना है कि इस पूल में कितने IP एड्रेस स्टैटिक होंगे, कितने डायनामिक होंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये आपका नेटवर्क है, अलीना, how many devices, how many interfaces this local area network can have? Shabash. This LAN, which is connected to R1, having a network address 192.168.10.0 with the subnet mask of /24, how many nodes, interfaces it can have? Okay, Alina लिखा 2 interfaces. मेरा क्वेश्चन ये था कि not the interfaces, but my question was how many pools I need at or on the router R2. So I need only 2, one for this LAN network and the other one for this network. So Alina, I can simply say, okay, Alina कहती है R1 पे क्यों नहीं? The answer is, Alina, that you are right, that I can have a DHCP on R1, on R3, even on R2. But what I have done here, I will configure a single DHCP here, and I will switch, I will relay these IPs via these. So these will become as a, अभी मैं आपको बताऊंगा, these R1 and R3 will be not acting like a server's DHCP, but they will be acting like a relay. So they will be relaying the request from the PCs, meaning the end devices, to the DHCP server on R2. And whatever the response comes back, they will be again relaying this to the end devices. So these R1 and R3 will be acting like relays, while R2 will be acting as a DHCP server. Does it make sense? Yes, sir. Okay. So, Excuse me, sir. G. सर ये S2 जो इंटरफेस है R2 का, और ये दूसरा सर R1 जिस इंटरफेस से लगा है सर, ये सीरियल इंटरफेस जो आप कह रहे हैं, ये सर ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है ना सर? जी बिल्कुल, ये अलग नेटवर्क है, लेकिन यहाँ कोई डिवाइस नहीं है,
और ये दोनों को, क्योंकि राउटर के इंटरफेसेस को हम स्टैटिक आईपी देते हैं, तो इनको हमने, आप जैसे देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं अगर मिसाल, बल्कि अब आपको नजर भी आ रहा है, अगर आप ये सीरियल इंटरफेस को देखें तो इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है 10.1.1.2। नजर आ रहा है आपको? राउटर R2 की सीरियल इंटरफेस sir. को एक स्टैटिक आईपी मिला हुआ है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों इंटरफेस देखें, इसको भी स्टैटिक मिला हुआ है, इसको भी स्टैटिक मिला हुआ है, इसकी भी अगर आप सीरियल को देखें तो 10.1.1.1 है। तो इन दोनों को आईपी एड्रेस ऑलरेडी मिला हुआ है जो कि स्टैटिक है। तो अगर इनको स्टैटिक आईपी मिला हुआ है तो इसका मतलब है इनको डायनेमिक आईपी की जरूरत नहीं है। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जो S2 का इंटरफेस है सर, उसकी जो आईपी है सर, वो तो अलग नेटवर्क है ना सर, तो ये दोनों अलग अलग पूल होंगे सर? अभी मैं यहाँ पे एक पूल में इस नेटवर्क के लिए बनाऊंगा, यानी 10.0 जी सर। नेटवर्क के लिए, एक मैं बनाऊंगा 30.0 के लिए, क्योंकि जी सर। 20.0 जो में, जी बोले ना सर। सर 20.0 की जो आईपी है सर, वो कौन से पूल से एम्पेयर लेंगे सर? वो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक ही डिवाइस है जिसका नाम है डीएनएस सर्वर, और अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इसका आईपी एड्रेस स्टैटिक है 192.168.20.254। यहाँ कोई डिवाइस नहीं है जो कि आईपी मांगे। जी सर। ठीक है, तो इसलिए मुझे सिर्फ दो पूल्स चाहिए, एक इस PC1 के लिए और एक PC1 और इसके रिलेटेड नोड्स के बारे के लिए, और एक PC2 के लिए, बस। एग्रीड? सही है सर। शाबाश। तो अगर ये बात यहां तक दुरुस्त है, तो मैंने कहा कि सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम ये जो इनमें से आईपी एड्रेसेस हम स्टैटिकली यूज करना चाहते हैं वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो पहला स्टेप हो गया। नंबर 2, हम पूल्स बनाएंगे। नंबर 3, हम उस पूल्स को आईपी की रेंज बताएंगे कि तुमने कौन सी आईपी की रेंज देनी है। हमने उसको बताना है कि तुम्हारा लीज टाइम क्या होगा, तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, तुम्हारा डीएनएस क्या होगा, अगर तुम्हारा कोई डोमेन है तो डोमेन क्या होगा। ये चीजें हमने थर्ड स्टेप में देनी है हर पूल को। इससे हमारा R2 पे काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर R1 और R3 पे आके यहां पे इसको रिले के तौर पे बना देंगे। R1 को और R3 को रिले DHCP के तौर पे बना देंगे, जो कि रिले करेगा बिटवीन R2 एंड द डिवाइसेस। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप ये होगा कि हम इन पीसीस को बताएंगे कि आप डायनामिकली आईपी लें, आपको कोई स्टैटिक आईपी मिलने का कोई चांस नहीं। तो ये 3 काम हमने करने हैं, 3 टास्क। पहली टास्क में 3 स्टेप्स। तो स्टार्ट करते हैं, तो फिर समझ आएगी, ऐसे गपशप लगाते रहें तो बात समझ में नहीं आएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, में ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं R2 पे आ गया। अक्सर यहां पे मैंने एनेबल लिख के प्रिविलेज मोड में चला गया, और कॉन्फ टर्मिनल लिखकर आपको पता है कि मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। पहला स्टेप मेरा इस R1 के नेटवर्क के लिए है कि मैं इसमें से कुछ एड्रेसेस एक्सक्लूड करना चाहता हूं, जो कि मैं स्टैटिकली यूज करूंगा। इसके लिए कमांड है आईपी DHCP excluded EXCLU excluded address. The meeting has been upgraded by the host and now include unlimited minutes. Good. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बता रहा है कि आईपी क्या कमांड है, आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। कौन से एड्रेसेस मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं? इस नेटवर्क के लिए जिसका एड्रेस है 192.168.10.1 0।
तो मैं इसको कहता हूं कि जेंटलमैन 192.168.10 से लेकर 192.168.10.10 तक के आईपी एड्रेस स्टैटिकली डायनेमिकली नहीं देने, एक्सक्लूड कर दो। अपने अपने जो तुम्हारा सेकंड स्टेप में बनेगा क्या कहना चाहिए, पूल, उस पूल में से ये 10 एड्रेसेस एक्सक्लूड कर देना। क्या मेरी बात समझ आ रही है नासिर? यस सर। शाबाश, इंटर कर दिया जी। बस ये 10 आईपी एड्रेस ये इससे देने की सलाहियत खत्म कर दी इसने, अपने किताब से उसको फाड़ के फेंक दिया। फिर मैं दूसरे आईपी के लिए, दूसरे नेटवर्क के लिए, जो कि ये आपको नजर आ रहा है 30.0, इसको, इसके भी पहले 10 आईपी एड्रेसेस एक्सक्लूड करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं? एक्सक्लूड करवा देता हूं अक्सर। तो मैं फिर ये कमांड रिपीट करता हूं, 192.168. आईपी एड्रेस, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। अब आईपी एड्रेसेस का नेम क्या हो जाएगा? 30.30। आप देखें क्या मैं चेंज कर रहा हूं, 10 को मैंने 30 कर दिया, यानी उस नेटवर्क पे चला गया, और इसको भी मैंने 30 कर दिया। 30.1 से लेकर 30.10 तक जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। यानी तो अगर तुम्हारे पूल में हो तुम्हें देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं उनको स्टैटिकली दूंगा अपने डिवाइसेस को। ये भी इंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ये रेंजेस, एक ये रेंज यानी ये 10 आईपी एड्रेसेस और ये 10 आईपी एड्रेसेस डीएचसीपी से निकल गए। एग्रीड नासिर, मोहसिन? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कि हम पूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूल बनाते हैं। तो कोई नाम देते हैं। तो हम फिर लिखते हैं आईपी डीएचसीपी, आईपी डीएचसीपी पूल, आईपी डीएचसीपी पूल। पूल का नाम दे दें जो आपका दिल चाहे। मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रिकल दे दें, सिविल दे दें, मैकेनिकल दे दें, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 दे दें, जो आपका दिल चाहे दे दें। मैं यहाँ पे वही नाम देता हूं जो कि इस डॉक्यूमेंट में है। वो कहता है ये R1 का लेन है, इसलिए R1 डैश लैन रख दो। तो मैं इसका नाम रख देता हूं R1 डैश लैन, लेकिन कोई जरूरी नहीं, कोई लकीर के फकीर वाली बात नहीं है। तो अक्सर मैंने पहले, सेकंड स्टेप हो रहा है। पहले स्टेप में हमने एक्सक्लूड कर दिए वो आईपीस जो कि डीएचसीपी नहीं दे सकेगा। नंबर 2, हमने एक पूल बना दिया, क्योंकि हमें 2 पूल चाहिए, एक .10.0 नेटवर्क के लिए यानी लेफ्ट नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, और दूसरा पूल मुझे इस साइड के लिए चाहिए क्योंकि 30.0 का नेटवर्क है जहां पे मेरा कर्सर इस वक्त घूम रहा है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने, आप देखें इस वक्त मुझे कौन बताएगा कि मैं किस I don't remember what I want to say. इस वक्त मैं किस मोड में हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। R2 और आगे कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, तो आपको नजर आ रहा है कि आई एम इन दी, एज यू कैन सी, आई एम इन दी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जो ही ये कमांड में एंटर करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्रॉम्प्ट तब्दील हो गई है। मेरी प्रॉम्प्ट तब्दील होके डीएचसीपी कॉन्फ़िग में चली गई है। इसका मतलब अब मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो इसका मतलब 2 स्टेप मेरे हो गए। एक्सक्लूडेड आईपीस भी मैंने रिमूव कर दिए, एक्सक्लूडेड आईपीस भी मैंने रिमूव कर दिए, और मैंने
पूल भी बना दिया, उसका नाम भी रख दिया R1 LAN। अब उसके अंदर मुझे कंपल्सरी 3 और टोटल अप टू 5 चीजें मैं डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहली चीज, कौन सा आपका नेटवर्क है? तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे जो नेटवर्क है जिसका नाम R1 LAN है, उसका नेटवर्क एड्रेस जो है 192.168.10.0 है। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा नेटवर्क और नेटवर्क का एड्रेस दे दूंगा, जो कि मुझे कौन बताएगा आप में से? 192.168, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है 10.0 नेटवर्क एड्रेस, नॉट द फर्स्ट जी। यूजेबल एड्रेस। 10.1 तो ठीक है। कहना ही नहीं है, क्योंकि 10.1 से 10 तक तो एक्सक्लूडेड है। और इसका सबनेट मास्क बता देंगे कि सबनेट मास्क क्या है, तो 255.255.255.0। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। थर्ड टास्क का पहला सब टास्क कह लें कि मैंने इसको नेटवर्क बता दिया कि किस नेटवर्क में तुमने आईपीस देने हैं। यहां से आईपीस, इस नेटवर्क, आपको पता चल रहा है कि टोटल ऑफ 256 एड्रेसेस हैं। उनमें से पहला एड्रेस नेटवर्क का होता है, आखिरी ब्रॉडकास्ट वो नहीं दिया जा सकता। टोटल इसके पास 254 आईपी एड्रेसेस हैं, उनमें से भी 10 आईपी एड्रेसेस हमने एक्सक्लूड कर दिया, रिमेनिंग आईपी एड्रेसेस ये बांट सकता है। तो इसका मतलब पहला काम मैंने इसको बता दिया। दूसरा, लाजमी तौर पे आपने नेटवर्क से बाहर भी जाना है, सिस्को के पास भी जाना है, नेटअकैड के पास भी जाना है, फेसबुक के पास भी जाना है, यूट्यूब के पास भी जाना है। तो यू नीड अ डिफॉल्ट गेटवे, मस्ट। अदरवाइज अगर डिफॉल्ट गेटवे नहीं है तो बस लैन के अंदर एंजॉय की रहे, बाहर जाने की इजाजत निश्ता। दैट्स द रीजन आई यूज द डिफॉल्ट, आई वांट टू गिव द डिफॉल्ट रूटर। क्या है आपका डिफॉल्ट रूटर? So ladies and gentlemen, please look at this example. This is your router R1 and the IP address of this interface R1 is 192.168.10.1 static. अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं है, मैं फॉर टाइम बिंग जिस पे कर्सर रखता हूं, you can see that the gigabit ethernet 0/0 as an IP address 192.168.10.1. although कि अलीना दिल में कह रही है कि मैं तो राउटर के ऊपर कर्सर रखूंगी तो मुझे तो आईपी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये राउटर है जो कि एक्सेस रूटर है, मैं तो इस पे कर्सर, अगर ये पूरा कर्सर तो क्या माउस भी फिराऊं तो मुझे आईपी एड्रेस नजर नहीं आता। वेरी राइटली सेड बाय यू। तो इसके लिए मुझे पता है कि आपको ये आता है कि आप R1 को ओपन करें और यहाँ पे एनेबल कर लें और यहाँ पे लिख दें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड इट विल शो यू that an IP address has been given to this Ethernet interface which is permanent, which is 10.1 192.168.10.1, while its serial interface has an IP address 10.1.1.1. So gentlemen, the gateway for this network, it means for PC1 for example, is 192.168.10.1. Agreed, Nasir? Dilaway is agreed? Aksa, Alina, Mohsin? Yes, sir. Agreed, sir. Okay, तो अगर आप एग्री करते हैं तो देन I can go to the router R2 back and I can give him मोहसिन भी यस सर कह रहे हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसका एड्रेस दे देता हूँ 192.168.10.1. दिस इज माय एड्रेस ऑफ माय डिफॉल्ट
router, default dash router address इंटर कर दिया तो DHCP को पता चल, R2 को पता चल, R2 पे काम कर रहा हूं तो दो चीजें मैंने R2 को बता दी कि आपके R1 लैन में आप एड्रेसेस जो दे सकते हैं वो इस नेटवर्क से दे सकते हैं या इस नेटवर्क को देंगे, और आपका डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वो इन डिफॉल्ट रूटर जो है वो ये होगा। थर्ड चीज, DNS इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि DNS नहीं होगा, अगर DNS नहीं होगा तो कोई कम्युनिकेशन, मतलब कितने आईपी एड्रेस आपको याद है? पता नहीं कितने सालों से आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, मुझे आप आईपी नहीं याद बता सकते। तो फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई शुड हैव a in the DH this I can show you here as well, ladies and gentlemen. If I write here CMD and I write, which I'm sure I want to show you in the real network, ipconfig/all, so you can see that my DHCP has provided me an IP address, a subnet mask, a lease time, the DNS gateway, this is the DNS, this is the default gateway, you can see. तो ये काम अगर रियल DHCP कर रहा है तो ये सिमुलेटेड DHCP ने भी यही 5 काम करने हैं. What are these? Give me an IP, number 1. Number 2, give me tell me the default gateway. Number 3, tell me the DNS. Number 4, tell me the lease time. And if I am the part of any domain, tell me the name of this domain as well. So these 4 or 5 things need to be done. For a time being, we have done only 2. Number 1, हमने अपने राउटर R2 को बता दिया है कि आपने इस नेटवर्क को देना है और इस नेटवर्क से ही आप इस रेंज से आपने जितने भी आईपी पॉसिबल है वो आप दे सकते हैं। अल्दो हमने पहले जो एक्सक्लूडेड है वो उसको बता दिए, फिर हमने उसको डिफॉल्ट गेटवे का राउटर का एड्रेस भी बता दिया। फिर हम थर्ड स्टेप पे आते हैं और उसको DNS सर्वर बताते हैं, DNS डैश सर्वर। आप मुझे बता सकते हैं आपके उस पूरे नेटवर्क में जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पूरे नेटवर्क में कहां है DNS? ये है। अल्दो ना ही ये DNS R1 का हिस्सा है, यानी इस लैन का हिस्सा है, ना वो इस लैन का हिस्सा है, वो इस लैन का हिस्सा है, लेकिन किसी भी लैन में होगा फर्क पड़ता है। तो हम बताना चाहते हैं इस राउटर को R2 को कि आपने इस लैन में DNS की तमाम जो क्वेरीज हैं वो इधर जाएंगी, जिसका IP एड्रेस है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 192.168.20.254। .254. So let's come here and get this IP address, this IP address here, ladies and gentlemen, which is 192.168.20.254, static IP of the DNS server. So I enter. So I did 3 tasks which are compulsory. कौन से एड्रेसेस देने हैं, कौन सा डिफॉल्ट गेटवे है, कौन सा DNS है। फोर्थ वन, लीज। तो लीज अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ज्यादा बेहतर है, स्पेलिंग गलत है, लीज के लिए चलें, पहले डोमेन लीज चलना तो चाहिए, लेकिन डोमेन नेम पहले दे देते हैं। domain dash name, yes, let it be uit.com, ये भी दे दिया। आखिरी चीज 4 दे दी। आखिरी चीज लीज, कितनी लीज, कितने टाइम के लिए अक्सा मैं IP एड्रेस दूं, डेज के लिए, आवर्स के लिए या मिनट्स के लिए। सो लेट मी, एक दिन के लिए आपकी मर्जी जी, 24 आवर कह लें। लीज अगर आप एक दिन के लिए देना चाहती हो 1 दे दें,
तो इट विल फॉर 24 आवर्स। अगर आप कहना चाहती नहीं जी 12 आवर्स, तो 0-12 दे दी, 12 आवर्स के लिए हो जाएगा। अगर आप कहें नहीं 00:30, इसका मतलब 30 सेकंड्स की 30 मिनट्स के लिए होगा। यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? तो चले, यस सर, बट आप लोगों ने कहा कि एक दिन के लिए दिया, लेकिन ये लीज नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? इट कैन बी द लीज। इसको देख लेते हैं, ये कंप्लीट कर लें, फिर इसको देख लेते हैं। लीज टाइम नहीं, शायद ये फीचर इसमें नहीं है, लेकिन रियल डिवाइसेस में होता है। देख लेते हैं जी, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब पहला वाला नेटवर्क की 4 चीजें जो कंपलसरी थी, 3 कंपलसरी थी, वो हमने दे दी। इसका मतलब है कि हमारा R1 LAN कंप्लीट हो गया है, उसका DHCP पूल कंप्लीट हो गया है। अब यहां से हम एग्जिट करते हैं, तो हम R2 के इस यहां पे आ गए। अब हम R3 के लिए काम शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी इसके एक्सक्लूडेड एड्रेसेस बताए हुए हैं, 30.1 से लेकर 30.10 तक। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके लिए भी DHCP पूल बनाते हैं, IP DHCP पूल, और इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल R3-LAN। सो इंटर किया, देखिए मैं अब फ्रॉम द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आई इंटर इनटू द DHCP कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब मैंने यहाँ पे 5 चीजें या 4 चीजें दे सकता हूं। सबसे पहले नेटवर्क। आप में से किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें। ओके, सो नेटवर्क का एड्रेस का क्या है, 192.168.30.0, और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो पहला काम कंप्लीट हो गया, नेटवर्क इसको बता दिया। नंबर 2, डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट रूटर। अब मुझे बताएं, मैं इसको क्लोज करता हूं, क्लोज तो नहीं करता, ये है मेरा R3 LAN। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों कर रहा है जी, किसका माइक ऑन है? हेलो, यस सर, किसी का भी ऑन नहीं है माइक। क्यों मुझे आवाज थोड़ी सी इको आती है? नहीं, नो प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे हैं कि अब आप यहाँ पे देखें R3 को, जैसे R1 मैंने आपको दिखाया था भी, इस तरह मैं अब R3 आपको दिखाता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये R3 में आप देखें तो 30.1 इज दी IP एड्रेस ऑफ दिस इंटरफेस, 30.1। और अगर आप इसको देखें सीरियल 001 को, तो इसका IP एड्रेस है 2.2.1, 10.2.2.1, 10.2.2.1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस, which is 192.168.30.1, as you can see on your screen. So ladies and gentlemen, I go to the router R2 back and I tell him the default router, और उसका IP एड्रेस है 192.168.30.1। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप is the DNS server, very important, DNS server। इस नेटवर्क के लिए भी यही DNS है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं, और इसका IP एड्रेस है 192.168.20.254।
254 as you can see on the screen. So I go back to my router R2 and I tell him the IP address, which is 192.168.20.254. तीन काम इंपॉर्टेंट जो थे वो हो गए. फोर्थ फिफ्थ ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम डोमेन नेम दे देते हैं. डोमेन नेम एंड uit.com. ये भी हो गया. इसका मतलब है कि मैंने दोनों तीन टास्क जो थे वो तीनों टास्क मैंने DHCP के सर्वर पे R2 पे कर दी. अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं R1 और R2 के ऊपर रिले बना दूं. क्या बना दूं? रिले बना दूं. यानी R1 और R2 को रिले बना दूं. रिले DHCP. R3 को सर, R1 और R1 और R3 को, या R1 और R3 को. ठीक है, कैसे बनाऊं जी R1 और R3 को? वेरी सिंपल. R1 पे पहले चला जाता हूं. ये R1 पे आ गया. इसको भी मैं एनेबल करता हूं, कॉन्फ करता हूं और यहां पे आ गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में. इसकी किस इंटरफेस को मैं ये काम करना चाहता हूं? लुक एट जेंटलमैन, इसकी मैं गीगाबिट 0/0 इंटरफेस पे. किस इंटरफेस पे? जिसपे आईपी एड्रेस है, जो कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे है. उस डिफॉल्ट गेटवे को कहना चाहता हूं कि तुमसे कोई भी आईपी मांगे इसके हवाले कर दो. इसके हवाले कर दो जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.2. एग्रीड? दोबारा सुनिए, मैं इस इंटरफेस को ये बताना चाहता हूं, R1 की, कि तुम्हारे पास कोई भी DHCP की रिक्वेस्ट आए इस इंटरफेस की तरफ भेज दो, क्योंकि मेरा DHCP सर्वर इस R2 के ऊपर है. सो व्हाट आई डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कहते हैं हेल्पर. इसको कहते हैं आईपी हेल्पर एड्रेस. यानी मैं इसको एक हेल्पर एड्रेस देता हूं कि तुम्हारी हेल्प करता हूं R1, तुमसे कोई भी आईपी मांगे बस इसके इस एड्रेस के ऊपर भेज दो. ये इसका इस राउटर के लिए ये एड्रेस जो कि 10.1.1.2 है, हेल्पर आईपी एड्रेस बन जाएगा. बस ये एक कमांड दूंगा, ये राउटर मेरे लिए रिले बन जाएगा. तो मैं करता हूं जी, ये मैं R1 पे आया और मैं इस इंटरफेस पे आता हूं जो कि गीगाबिट 0/0 है. आप देख रहे हैं मैं इंटरफेस पे आ गया और इसको मैं एक कमांड सिर्फ देता हूं, आईपी हेल्पर एड्रेस. आईपी हेल्पर एड्रेस जो कि राउटर की, जो आपका DHCP सर्वर है उसकी इंटरफेस जो कि है 10.1.1.2. देख सकते हो इसकी इंटरफेस, इस राउटर R2 की सीरियल 000 की इंटरफेस जो है उसका एड्रेस 10.1.1.2 है. नजर आ रही है नक्शा? जी सर. शाबाश. तो मैंने इसके साथ यही काम किया कि इसको ये कमांड दे दी और इंटर कर दिया. बस ये मेरे लिए क्या बन गया? रिले बन गया. इसी तरह मुझे रिले दूसरे को भी बनाना है. किसको बनाना है? R3 को बनाना है. ये मैं R3 के पास आया, इसको भी मैंने एनेबल दिया, इसको भी मैंने कॉन्फ दिया. अब इसकी किस इंटरफेस पे आके मुझे काम करना है देख लेते हैं. ये इसकी 0/0 इंटरफेस है जिसका एड्रेस 30.1 है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि गीगाबिट 0/0 है. तो मैं इसकी इंटरफेस पे चला जाता हूं
इंटरफेस गीगाबिट 0/0 0/0। इस इंटरफेस को मैं हेल्पर बना, इसके लिए हेल्पर कौन है, इसके लिए हेल्पर ये इंटरफेस है 001 सीरियल 001। देख लेते हैं 001 का एड्रेस क्या है। इस 001 का एड्रेस है 10.2.2.2। ऐसा क्या आप देख सकते हैं कि इस सीरियल इंटरफेस 001 का एड्रेस 10.2.2.2 है। बिल्कुल सर। तो दे देते हैं फिर, जब आपने बिल्कुल कह दिया, बाद में कोई वो ही नहीं रहा, तो आईपी हेल्पर एड्रेस इज 10.2.2.2 10.2.2.2 इंटर कर देते हैं। बस ये भी है हमारे लिए बन गया, क्या बन गया, रिले बन गया। R3 भी रिले बन गया, R1 भी रिले बन गया। हमारा मसला, दूसरा काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। DHCP सर्वर भी बन गया, रिलेज भी बन गए। थर्ड काम हम करते हैं जो कि बहुत ही इजी है, जैसे अभी मैंने किया रियल कंप्यूटर पे आपके सामने, मैं PC1 पे और PC3 पे भी ये काम करता हूं। मैं इनके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके इनको स्टैटिक आईपी की बजाय कहता हूं जी DHCP से लो। देखिए जो ही मैंने कहा DHCP से लो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया। देखिए जो ही, दोबारा जरा गौर से देखें, जब स्टैटिक था तो ये जगह खाली थी। जो ही मैंने इसको कहा DHCP से लो, देखें DHCP ने इसको दे दिया पहला आईपी है, क्योंकि 10 उसने एक्सक्लूड किए हुए थे, 1 to 10, 10.11 इसके हवाले कर दिया। इसको गेटवे भी बता दिया कि तुम्हारा गेटवे 10.1 है। इसको DNS भी बता दिया कि 20.254 है। आप कहेंगे जादू हो गया, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। जादू क्या हो गया, अब हम PC3 पे और अगर आप फिर भी शक हो, मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन से निकल के कमांड लाइन पे आके, पहले देखिए सारे 000 थे, अब आपको बताता हूं, वही कमांड रिपीट करता हूं, ipconfig/all, और आप देख सकते हैं इसको आईपी एड्रेस भी मिल गया, सबनेट मास्क भी मिल गया, गेटवे भी मिल गया, DHCP भी मिल गया, DNS भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, DNS भी मिल गया। इसी तरह मैं यही काम PC2 के साथ भी करके आपको दिखाता हूं। इसके भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टैटिक, देखिए स्टैटिक है तो ये खाली है, ब्लैंक है। जो ही मैंने इनको DHCP के हवाले किया, आप देखेंगे विद इन सेकंड इसको आईपी मिल गया 30.11। ये पहला आईपी एड्रेस के हवाले कर दिया गया, सबनेट मास्क भी मिल गया, गेटवे भी मिल गया, DNS भी मिल गया। तो इसका मतलब हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक टास्क रहता है, सिर्फ एक टास्क रहता है, इस इंटरफेस को आईपी कौन देगा। अगर मैं R2 को खोल लूं, यहां से मैं एंड कर दूं और यहां पे मैं कमांड दूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे, बिल्कुल एग्री करेंगे, कोई बात नहीं है डिसएग्रीमेंट की, कि आपके गीगाबिट, आपके गीगा 0/0 भी जो है, इसको भी 20.1 का आईपी एड्रेस, ये R2 राउटर है, आप देख सकते हैं। यस, R2 के जो इधर का इस साइड पे जो है उसको 20.1, इस इंटरफेस को 20.1 मिल गया। सीरियल इंटरफेस को 1.1.2 जो दूसरे एंड पे है उसको ये मिल गया, लेकिन एक इंटरफेस रहती है जिसका आईपी एड्रेस कोई नहीं। एक इंटरफेस जो ये इंटरफेस है, इसको आईपी एड्रेस नहीं मिला हुआ अभी तक, इसको आईपी एड्रेस अभी तक नहीं मिला हुआ। क्या करें, अभी इसको भी, इसके साथ भी खेल लेते हैं।
आखिरी टास्क है हमारा, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, कि हमने इसको अब बनाना है क्लाइंट, हमने इसको बनाना है क्लाइंट। और ये कौन सी इंटरफेस है जिसको आईपी एड्रेस, जो कि ईथरनेट इंटरफेस है 0/1, क्योंकि 0/0 को इस 0/0 को मिला हुआ है, 0/1 को नहीं मिला हुआ। देखें 0/1 गीगा 0/1 को आईपी नहीं मिला हुआ, तो इसको हम कहते हैं डीएचसीपी से लो। कौन सा डीएचसीपी? जो कि लाजमी तौर पे इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि आईएसपी। तो जेंटलमैन मैं इसके पास आया और अब मैं कॉन्फ टर्मिनल करता हूं, और अब मैं करता हूं किस इंटरफेस में चाहिए? गीगाबिट 0/1, 0/1। नाइस। और इसको क्या कहता हूं 0/1 को? कि तुम आईपी एड्रेस कहां से लो? डीएचसीपी से लो। यानी आईपी एड्रेस डीएचसीपी। बस ये कमांड देनी थी, ये कमांड देनी थी, और इसको ओपन कर देना है, क्योंकि नॉर्मली शटडाउन होती है, नो शटडाउन। बस ये स्टेट अप हो गई, इसको आईपी एड्रेस इस रेंज से मिल जाएगा। इस रेंज से 2 to 4 से ऊपर कोई भी एड्रेस, देखें ये अभी एक्टिव हो जाएगी कुछ देर में। जो ही एक्टिव होती है मैं इसका आईपी एड्रेस आपको दिखा। तो इसका मतलब लास्ट टास्क में हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने इस इंटरफेस पे आईपी नहीं था, अदरवाइज हम इस साइट पे cisco.com के पास या इसके पास पब्लिक साइट जो भी है इसके पास नहीं जा सकते थे। तो जो इसको जब आईपी देखिए ये ग्रीन हो गया, जो ही ये ग्रीन हुआ मैं दोबारा इसको आपके सामने लेकर आता हूं और कमांड देता हूं एंड और शो आईपी एड्रेस, आईपी इंटरफेस ब्रीफ। Please look at here, gentlemen. You will find that my both the, although अभी तक ये अनअसाइंड शो कर रहा है, लेकिन इसको आईपी मिल चुका होना चाहिए, अभी तक नहीं भी मिला तो अभी मिल जाएगा। ये देखें जी, इसको आईपी एड्रेस क्या मिल गया? 209.165.200.225 यानी इस इंटरफेस को ये आईपी एड्रेस नेबर से मिल गया। तो हम देख लेते हैं अब जी। देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि इसको ये आईपी एड्रेस मिल गया। पहले वाले को स्टैटिक आईपी है, यानी मैनुअली दिया गया है, और इस वाली इंटरफेस को डीएचसीपी ने दिया है, यानी डायनामिकली मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। अल्दो के सारी ग्रीन पॉइंट से शो कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी इज ऑलवेज एवरीवेयर, कनेक्टिविटी इज देयर इज नो इशू। लेकिन रियल नेटवर्क्स में तो कोई ग्रीन एरोज या ऑरेंज एरोज नहीं होते, हमें करके देखना पड़ेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये है मेरा PC1। मैं यहां से बैठ के सबसे पहले अपने आप को पिंग करता हूं, पिंग 192.168.10. मेरा गेटवे 10.1 जवाब आ रहा है। फिर उसके बाद मैं डीएनएस को करके देखता हूं, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.20.254। दूसरे लैन में जा रहा हूं, देख लें उससे भी जवाब आ रहा है, उससे भी जवाब आ रहा है। किससे? डीएनएस से। अब मैं अपने नेबर PC2 को करके देखता हूं, पिंग 192.168.20.11, उसको 20.11 एड्रेस मिला है। देख लेते हैं। आपको पता है कि पहला क्यों टाइम आउट हो जाता है? 30.1 है उसका, 30.11 है, आईपी एड्रेस गलत दिया है, उसका 30.11 है।
20.11 इस नेटवर्क में कोई डिवाइस नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन मैं इसको कर देता हूं 30.11। राइट साइड पे जो नेटवर्क है उसका एड्रेस 30.11। ये जी इससे भी जवाब आ रहा है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इनको भी पिंग करवा सकता हूं। इसका आईपी एड्रेस क्या है? 209.209.165.202.158। इसको भी करके देख लेते हैं। cisco.com के पास भी चले जाते हैं एंड पिंग इज 209.165.202.158। जी इससे भी जवाब आ रहा है। मतलब मेरा पूरा नेटवर्क प्रॉपर्ली काम कर रहा है, नो इश्यू इज देयर। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या मैंने ये समझाने के काबिल अब मैं क्या करता हूं, इस राउटर पे जाके कुछ कमांड्स आपके सामने, आखिरी 2-4 कमांड्स काम लेना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं शो आईपी शो रनिंग कन्फिग, शो रनिंग कन्फिग, और इसको पाइप करता हूं और मैं सिर्फ वो सेक्शन देखना चाहता हूं जिसमें DHCP लिखा हुआ हो। कहां गलती की है? ओके, गलती छोटी सी है, ये है। चेक कर लें जी, जितनी भी कमांड मैंने DHCP के बारे में दी है वो सारी मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नजर आ रही। मैंने जो आईपी एड्रेस एक्सक्लूड किए, मैंने जो R1 लैन पूल क्रिएट किया, मैंने उसके अंदर डिफाइन किया कि नेटवर्क क्या होगा, डिफॉल्ट राउटर क्या होंगे, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, DNS क्या होगा, डोमेन नेम क्या होगा, सारी चीजें आपको दिखाई दे। फिर बताया कि जिस इंटरफेस ने आईपी एड्रेस डायरेक्टली लेना है फ्रॉम दी सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए आखिरी कमांड आपको नजर आ रही है आईपी एड्रेस DHCP, आईपी एड्रेस DHCP। इसके अलावा अगर एक और खूबसूरत कमांड जो कि आपको इस लेवल पे काम आएगी, दैट इज आईपी एड्रेस, नहीं शो तो भूल गया ना, शो आईपी एड्रेस DHCP, आईपी एड्रेस अगर नहीं है तो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी ये कमांड्स। ये 3 कमांड्स आपके साथ शेयर की थी जी। सेकंड वन इज शो आईपी DHCP बाइंडिंग, शो आईपी DHCP बाइंडिंग। तो कर लेते हैं ये कमांड भी। क्या बताता है हमें ये, हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। हम R2 पे हैं और शो आईपी DHCP बाइंडिंग, देखें जी ये बता रहा है कि किस मैक एड्रेस को कौन सा आईपी एड्रेस दिया गया हुआ है, कौन से मैक एड्रेस को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया गया है और किस तरीके से दिया गया है, ऑटोमेटिकली यानी डायनामिकली। बात समझ आ गई? इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये वाला DHCP क्या है, स्टेटफुल है। इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से इसने कौन कौन सा आईपी एड्रेस दिया हुआ है। बात समझ आ गई? जी सर। ठीक, तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं, ये बाइंडिंग बता रहा है। तो हमारा मकसद ये है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा था, हमने अपने नेटवर्क में भी इसको चेक कर लिया। तो इस तरह हमने जो DHCP का कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम इसको टक करके यहाँ से सिर्फ रीड करते, हमने टक करके रीड नहीं किया, बल्कि हमने कंप्लीटली इसको इंप्लीमेंट करके देख लिया।
जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली उस सिर्फ इन स्लाइड्स को पढ़ने के मुकाबले में बहुत बेहतर है। एंड विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। सर लेकिन लीज वाली कमांड ने काम नहीं किया। वो मैं देख लेता हूँ कि क्यों नहीं की, बल्कि हम इससे हमारा राउटर की कौन सी वो है अभी देख लेते हैं, कौन सा राउटर हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और राउटर में अगर हम आ जाएं, ओके ओके, इसकी जरूरत नहीं है, ये है, तो ये राउटर है, तो ये 1941 मॉडल है। चलिए ठीक है, 1941, तो हम चेक कर लेते हैं। और दो कमांड यही होती है, लीज एंड देन डेज मिनट्स वट एवर यू वांट। तो हम अभी इसको दे देते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम इसको कहते हैं जी लीज सिस्को DHCP सिस्को राउटर 1941 lease configuration, lease DHCP lease configuration, DHCP lease configuration. DHCP on Cisco 1941. जनाब अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल F करके लीज LEASE, and there are three, so another new idea, please think. Lease dash time, probably don't forget to configure DNS server as well as the lease dash time. Okay, कर लेते हैं जी, lease dash time चेक कर लेते हैं वापस। ये हम यहाँ पे आए, ये हम R2 पे गए, R2 में हम चले जाते हैं कॉन्फ टर्मिनल, यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हम चले जाते हैं IP DHCP पूल, एंड फॉर एग्जांपल हम करते हैं R1 LAN, R1-LAN, ये नाम था ना हमारे उसका, R1-LAN ही हमने रखा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, R1-LAN, बिल्कुल LAN कैपिटल था सर। जी बिल्कुल। तो ये हमने कर दिया। अब है लीज, बाकी सारी चीजें हुई है, लीज डैश टाइम, और लेट करेंगे हम इसको दे देते हैं 0/, इसके लीज टाइम से मसला है, अभी भी लीज टाइम ही था ना, लीज डैश टाइम, लीज डैश टाइम, लीज बगैर इसके लीज टाइम देके देखते हैं। लीज टाइम 12, 0/12, इसको लीज से मसला है।
वही कमांड जो मैंने दी, R1 पे DHCP पे हम आगे देखें, IP DHCP पूल, कॉन्फ़िग टर्मिनल पूल किया और फिर लीज 5 12 30 यानी 5 दिन 12 घंटे और 30 मिनट। लीज 1 देके दोबारा कर लेते हैं, लीज 1, लेकिन एल पे ही ये मसला कर देता है, लीज 1। चलो मैं इसको देख लूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप देख रहे हैं कि लिटरेचर में ये चीजें अवेलेबल है, लेकिन हम इसको देख लेंगे क्यों ये लीज नहीं उठा रहा, लेकिन बाकी 4 चीजें उठा रही। इज इट क्लियर एसन? क्लियर सर। तो इज देयर एनी क्वेश्चन? मोहसिन, अलीना, दिलावेज, एहसन, उस्मान? नो सर। ओके, सो देन अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई स्टॉप हियर। इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो गया, 7 चैप्टर। कल हम चैप्टर नंबर 8 के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन आई शुड स्टॉप, कीप लर्निंग।